اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ادعونی استجب لکم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس عظیم الشان اور عظیم المرتبت دعا سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جو دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے مشہور ہے، اور جس دعا کی بڑی برکتیں اور بڑی عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اس دعا کے متعدد فوائد علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ اور آج آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے۔ علماء کے مطابق اس دعا کے پڑھنے کی بنا پر انسان کو ذکر پروردگار کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ بندہ اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کا ذکر کرے۔ یہ دعا انسان کو ذکر پروردگار سکھاتی ہے۔ یہ دعا انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور کس طرح سے ذکر پروردگار میں اپنی زبان کو مصروف رکھو۔ لہٰذا اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے، تاکہ ذکر پروردگار کی توفیق ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ پروردگار نے متعدد انداز سے اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو ذکر پروردگار ہی ہے جو دلوں کو، قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس ذکر کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائے، اور یہ دعا اسی ذکر پروردگار کی توفیق بندے کو عطا کرتی ہے۔ میں اس دعا کے بعض فراز اور بعض اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس دعا کے مقام پر ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا کہ الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک، اے میرے پروردگار تو نے میری پرورش کی ہے اپنی نعمتوں اور اپنے احسان کے ساتھ۔ وہ تمام احسان جو تیری بارگاہ سے آئے، وہ تمام نیکیاں اور نعمتیں جو تیری بارگاہ سے مجھے ملیں، ان کے زیر سایہ میں نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ میں نے رزق تیری بارگاہ سے پایا، میں نے عمر تیری بارگاہ سے پائی، میں نے سانس لینے کے لیے آکسیجن تیری بارگاہ سے حاصل کی، میں نے مختلف طرح کی کھانے پینے کی نعمتیں جو میری زندگی کو عطا کرنے والی تھیں وہ سب تیری بارگاہ سے حاصل کیں۔ میں نے اگر اپنے والدین کی نعمت پائی تو تیری بنا پر، اگر خاندان کی نعمت ملی تو تیری بنا پر، اگر دین کی نعمت ملی جو دین اسلام کی شکل میں ہے تو تیری بنا پر، اگر پیغمبر اسلام کی رسالت کا عقیدہ اختیار کیا نعمت کی شکل میں تو یہ تیری طرف سے ہے، اگر ولایت اہل بیت اطہار کو میں نے حاصل کیا تو یہ تیری طرف سے نعمت ہے، اگر قرآن کو میں نے سیکھا، قرآن کو میں نے پڑھا، قرآن کو اپنی زندگی میں اختیار کیا اور اتارا تو یہ بھی تیری طرف سے نعمت ہے۔ ساری نعمتیں اے میرے پروردگار، آج تک انہی ساری نعمتوں کے زیر سایہ میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے پرورش پائی ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرمانے کہ الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، بچپن ہی سے مسلسل تیری نعمتوں کے زیر سایہ،
तेरे एहसान के ज़ेर साया मैंने परवरिश पाई। व नव्वहता बिस्मी कबीरा, और परवरदिगार मेरे नाम के साथ तूने मुझे बड़ा किया है। कल जिस मौके के ऊपर इसी नाम से मुझे लोग याद करते थे, मुझे छोटा समझ के याद किया जाता था, आज जब इसी नाम के साथ मुझे याद करते हैं, ये परवरदिगार तेरी नेमत है कि वो अब मुझे बड़े नामों से, अच्छे अच्छे नामों से, बुजुर्गी के साथ वाले नामों से मुझे याद करते हैं। कल मुझे छोटा बच्चा समझा जाता था, आज तेरी नेमत है कि मैं इंसानों के दरमियान बड़ा समझा जाने लग गया। फ़या मन रब्बानी फ़िद दुनिया बेहसान ही व तफ़द्दुल ही व निअम ही, ऐ वो ज़ात जिसने मुझे इस दुनिया में अपने एहसान, अपने फ़ज़्ल व करम और अपनी नेमतों के साथ पाला और बड़ा किया। व अशार अली फ़िल आखिरत इला अफ़्वही व करमे, और तेरी ही ज़ात है जिसने मुझे इस बात की तरफ मुतवज्जिह कराया, जिसने इस बात की तरफ इशारा किया कि आखिरत के मैदान में तेरा अफ़्व और करम है जो बंदों के शामिल हाल हो सकता है। यानी इसके माना है इस दुनिया में नेमतों को अल्लाह अता कर रहा है और मैदान महशर में अपने अफ़ और करम के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारने का मौका और तौफ़ीक परवरदिगार अता करेगा। कितना करीम है, दुनिया में भी नेमतें, बचपन में भी नेमतें, बड़े हो जाने पर भी नेमतें, और फिर मैदान महशर में भी नेमतें। कितनी नेमतें अल्लाह अता करता है। दुनिया का दस्तूर है कि माँ बाप अपनी औलाद का बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन कब तक? जब तक औलाद बड़ी न हो जाए, जब तक औलाद खुद अपने पैरों पे खड़ी न हो जाए, जब तक औलाद खुद रकम पैदा कर रकम को खुद हासिल न करने लग जाए, तब तक माँ बाप कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए एक मरहला ऐसा आता है कि फिर उनकी परवरिश, उनकी तरबियत को छोड़ देते हैं। कितना करीम है मेरा परवरदिगार कि जो इंसान की पैदाइश से लेके जवानी तक, जवानी से लेके ज़ईफ़ी तक, ज़ईफ़ी से लेके कब्र तक मुसलसल अपनी नेमतों को अता करता रहता है, मुसलसल इंसानों की परवरिश करता रहता है। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। इंसान कब्र में आराम कर रहा है, नेमत परवरदिगार का सिलसिला जारी है। इंसान बरज़ख में है, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला जारी है। इंसान मैदान महशर में आ रहा है, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला बरकरार है। इंसान हौज़ कौसर पे जा रहा है, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला बरकरार है। हत्ता इंसान जन्नत की वादी में कदम रख रहा है, वहाँ भी अल्लाह की नेमतों का सिलसिला बरकरार है। परवरदिगार कितनी नेमतें हैं कि जिन नेमतों को तू मुझे अता कर रहा है, यानी इब्तिदा से लेके इंतहा तक हर मरहले में तुझसे मिलने वाली नेमतों से मैं आशना हो चुका हूँ, मुझे आदत पड़ चुकी है इन नेमतों की। और उसके बाद मारिफती या मौला या दलीली अलैक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं जो तेरे सिलसिले में मारिफत रखता हूँ वही तेरे वजूद की मेरे लिए बेहतरीन दलील है। मैं पहचानता हूँ कि नेमतें तूने दी हैं, लिहाजा तेरी मारिफत मेरे वजूद के अंदर, तेरी मारिफत मेरे पूरे जिस्म और जान के अंदर जो पाई जाती है वो तेरे वजूद की बेहतरीन दलील है खुद मेरे लिए। व हुब्बी लका शफ़ीई इलैक, और वो जो मोहब्बत मेरे दिल में तेरे लिए पाई जाती है, यही मोहब्बत तुझ तक मुझे पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है। यही मोहब्बत है जो मेरी बुराइयों के मुकाबिल तेरे अफ़्व और तेरे दरगुज़र के जज्बे को बेदार करने वाली शय है। और उसके बाद मौला फरमाते हैं कि अदऊक या सैयदी बेलिसान क़द अखरसहु ज़म्बुह, परवरदिगार मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मैं तुझे सदा दे रहा हूँ। ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे परवरिश करने वाले, मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ
اس زبان کے ذریعے سے قد اخرسہ ذنبہ کہ جس زبان کو گنگ کر دیا ہے، جس زبان کی بولنے کی طاقت کو سلب کر لیا ہے، اس کی گناہوں نے، اس کی خرابیوں نے، اس کی برائیوں نے، اس کی سرکشیوں نے، ان ساری چیزوں نے اب اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت اور ہمت ختم کر دی ہے۔ جب مجرم آتا ہے کسی جج کے سامنے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ڈٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے، بہت اکڑ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس مجرم کو پتا ہو کہ میرے جرم کا گواہ خود یہ جج ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس مجرم کے اندر بولنے کی طاقت باقی نہیں بچتی، اس کے اندر گفتگو کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ بول بھی نہیں پاتا ہے۔ یہی صورتحال اس انسان کی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا فریاد کر رہا ہے، اس لیے کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ اللہ سے ڈرو اس موقع پر جب تم تنہائی میں بھی ہو، اس لیے کہ اس موقع پہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، روایتوں میں وارد ہوا کہ جس موقع کے اوپر تنہائی میں بھی بیٹھے ہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس وقت دیکھ رہا ہے، کل میدان محشر میں وہی جج ہوگا، کل میدان محشر میں وہی عدالت قائم کرے گا، کل میدان محشر میں وہی فیصلہ سنائے گا۔ لہٰذا مولا انسانوں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے یہ جملہ فرمانے کے پروردگار تیری بارگاہ میں آواز دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، صدا بلند کر رہا ہوں اس زبان کے ذریعے جس زبان کو اس کی گناہوں نے خاموش کر دیا ہے، اس کی گناہوں نے بولنے کی طاقت کو سلب کر لیا ہے۔ رب اناجیک بقلب قد اوبقہ جرمہ، پروردگار وہ دل تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، وہ دل تیری بارگاہ میں چیخ چیخ کے آوازیں بلند کر رہا ہے کہ جس دل کو اس کے جرم نے تباہ کر دیا ہے، جس کو خراب کر دیا ہے اس کی سرکشیوں نے، جس کو تباہ کر دیا ہے تیری معصیت نے، اس نے گناہوں کے ذریعے سے خود کو تباہ و برباد کر لیا۔ اب اس دل کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آواز دے رہا ہوں، اس دل کے ذریعے سے تجھے پکارنے جا رہا ہوں۔ ادعوک یا ربی، اے پروردگار تجھے پکار رہا ہوں، میں دعوت تجھے دے رہا ہوں، میں تجھے صدا لگا رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھے آواز دے رہا ہوں۔ راہبن، اے میرے پروردگار میں آواز دے رہا ہوں سہما ہوا، ڈرا ہوا تیری بارگاہ میں آواز دے رہا ہوں، لیکن راغبا، ڈرا ہوا ضرور ہوں لیکن امید لگائے ہوئے تجھ سے آوازیں دے رہا ہوں۔ راجین، اس کے دل میں ایک شوق ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، لیکن خائفا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوف بھی پایا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ادعوک یا رب، اے میرے پروردگار میں تجھے آواز دے رہا ہوں، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ اذا رأیت مولاي ذنوبی فزعت، اے میرے پروردگار جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میں تیری طرف دیکھ کے چیخنے لگتا ہوں۔ کون ہے جو میری گناہوں کو معاف کر دے؟ کون ہے جو میری گناہوں کو چھپا لے جائے؟ کون ہے جو میری گناہوں پہ پردہ ڈال دے؟ میں جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو بس تیری طرف دیکھ کر چیخنے لگتا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْتُ، لیکن پروردگار جیسے ہی میں تیرا کرم دیکھتا ہوں، ایک امید اور ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میرا پروردگار مجھے یقیناً معاف کر دے گا، اب میرا پروردگار مجھ پر یقیناً رحم کرے گا۔ فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمٍ، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تجھ سے بہتر کون رحم کرنے والا ہے؟ سب سے بہتر، سب سے اچھے انداز سے اگر
इस कायनात में कोई रहम कर सकता है वो तेरी ज़ात है। व इन अज़ब्ता फ़ग़ैरु ज़ालिम, ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू अज़ाब नाज़िल करेगा तो यकीनन तू अपने बंदों पर ज़ालिम नहीं है, यकीनन बंदों का हक है इस बिना पर तू अज़ाब को नाजिल करेगा। यकीनन इन बंदों के ऐसे किरदार हैं, ऐसे उनके अमाल हैं कि जिनकी बिना पर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लिहाजा इस बिना पर तेरी बारगाह से उन पर इक़ाब नाजिल होगा। यानी अगर तेरी बारगाह से मग़फ़िरत आ रही है तो ये तेरे रहम की बिना पर है, अगर तेरी बारगाह से अज़ाब आ रहा है तो ये तेरी अदालत की बिना पर है। ज़र्रा बराबर भी अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं कर सकता। इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कुरान मजीद कह रहा है कि ज़र्रा बराबर भी जुल्म का तसव्वुर नहीं है ज़ात परवरदिगार के वहाँ। लिहाजा अजाब का आना आईन अदालत है और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का आ जाना ये अल्लाह की तरफ से आईन रहम का तकाज़ा है। और उसके बाद मौला फरमाते हैं फ़हुज्जती या अल्लाह फ़ी जुरअती अला मसअलतिक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में जो इस वक्त सवाल कर रहा हूँ, ये जो हिम्मत जुटा रहा हूँ, यही मेरे पास तेरी बारगाह में पेश करने के लिए मेरी तरफ से हुज्जत है। यकीन जाने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने, अल्लाह की बारगाह में इल्तिमास करने, अल्लाह की बारगाह में दिल की बात को कहने के लिए भी हिम्मत और जुर्अत चाहिए। ये मेरी तरफ से हिम्मत और जुर्अत भी इसी बिना पर है कि ऐ मेरे परवरदिगार मैंने तुझको करम करते हुए देखा है, मैंने तुझे अपने बंदों के ऊपर रहम नाजिल करते हुए देखा है, मैंने अपने बंदों को माफ़ करते हुए तुझे अपने बंदों को बख्शते हुए देखा है, इसलिए मेरे अंदर भी हिम्मत पैदा हो गई। आपने देखा होगा जिस मौके के ऊपर बहुत से मुजरिम लाइन से खड़े हों, उनमें से दो चार मुजरिमों को अगर माफ़ कर दिया जाए तो अब बकिया के अंदर भी हिम्मत पैदा होती है, वो भी अपने दिल की बात, अपने दिल की भड़ास को निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी रहम की उम्मीद लेके आगे बढ़ते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार अगर तुझे रहम करते हुए हमने न देखा होता तो हरगिज़ हम तेरी बारगाह में न गिड़गिड़ाते, लेकिन इसलिए गिड़गिड़ा कर इल्तिमास कर रहे हैं कि हमने तुझे अपने बंदों पे रहम करते हुए, अपने बंदों को माफ़ करते हुए, अपने बंदों के अमाल को दामन अफ़ में जगह देते हुए देखा है। मौला फरमाते फ़हक़्क़िक़ रजाई, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मीदों को पूरा कर दे। मैं जो उम्मीद लेकर तेरी बारगाह में इस माह मुबारक रमज़ान की रातों में आकर बैठा हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार इस उम्मीद को पूरा कर दे, मुझे मायूस न करना, जो तुझसे मांगने आया हूँ उसे मुझे अता कर देना। वस्मा दुआई या खैर मन दआहु दाइन, ऐ जब पुकारा जाए तो सबसे ज़्यादा दुआओं को सुनने वाले मेरी दुआ को भी सुन ले। इस जुमले के ज़रिए से मौला फरमाना चाह रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं दूसरों की तरह से तेरी बारगाह में भी आकर गिड़गिड़ा रहा हूँ, मांग रहा हूँ। जब तू दूसरों को सुनता है तो ऐ परवरदिगार मेरी आवाज़ को भी सुन ले। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी तरफ भी तवज्जो फरमा दे। वला तो आखिदनी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा मुहासिबा न करना, मेरा हिसाब किताब न करना बेअस्वए अमली, उन अमाल की बिना पर जो सबसे बुरे हैं, वो एक बुराइयों के दरमियान जो सबसे बड़ी बुराई है, मेरे परवरदिगार उसकी बिना पर तू मेरा हिसाब किताब न करना, मेरा मुआखज़ा न करना। फ़इन्न करमका यजिल्लु अन मुजाज़ातिल मुज़निबीन, इसलिए कि ऐ मेरे परवरदिगार तेरा करम जो अपने बंदों के लिए है वो गुनहगारों को सज़ा देने की बनिस्बत कहीं ज़्यादा अजीम और बड़ा है।
दोनों चीज़ें तेरे इख्तियार में हैं। तू चाहे तो गुनाहगारों को सज़ा दे, तू चाहे तो अपने बंदों पे करम कर दे। इन दोनों में अगर मुकाबला किया जाए तो गुनाहगारों को सज़ा देने से कहीं ज़्यादा बड़ी शय ये है कि तू अपने बंदों के ऊपर रहम फरमा दे, तू अपने बंदों के लिए करीम बन जा, तू अपने बंदों के लिए नेक बन जा, तू अपने बंदों के लिए एक ऐसी ज़ात कि जो अपने बंदों पे करम करता है वो करार फरमा और वैसा बन जा। फिर मौला फरमा रहे हैं कि वह हिल्म का यकबुर अन मुकाफातिल मुक़स्सिरीन। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा हिल्म कोताही करने वालों की सज़ाओं से बहुत बड़ा है। तू जो बर्दाश्त कर लेता है, अपने बंदों को सारे अमाल को देख कर भी खामोश रह जाता है, ये सज़ा देने की बनिस्बत कहीं बड़ी शय है। यकीनन परवरदिगार, तुझे सज़ा देना पसंद नहीं है, तुझे हिल्म से काम लेना पसंद है। जिस तरह से तुझे अपने बंदों को सज़ा देने से ज़्यादा अपने करम से मोहब्बत है, इसी तरह से ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तेरी ये खासियत है कि तू कोताहियाँ करने वालों को सज़ाएँ दे, इससे ज़्यादा तू इस बात को पसंद करता है। और तेरे नज़दीक ये कहीं बड़ी बात है कि तू माफ़ कर देता है, तू अपने बंदों से चश्म पोशी इख्तियार करता है, तो आँखों को गोया बंद कर लेता है। व अना या सैयदी आइदुम बिफ़द्लिक हारिबुम मिनका इलैक। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे मालिक, मैं पनाह लेता हूँ तेरे फजल से, और मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूँ भाग कर। मैं इस जुमले की वजाहत करने से पहले इस जुमले को ज़रूर वाज़ेह कर दूँ कि बार बार मौला इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, या सैयदी, या सैयदी, ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे आका। आपने देखा होगा ग़ुलाम की एक ख़ासियत होती है, वो जब अपने आका के सामने खड़ा हो तो वो अपने आका को सैयदो सरदार कहता है, सैयदी कहता है। ये बंदा ग़ुलाम की तरह से अपने आका की बारगाह में खड़े होकर आवाज़ दे रहा है, ऐ मेरे आका। ये जो ग़ुलाम अपने आका को सैयद कहकर पुकारता है, इसके माना ये होते हैं कि अब मेरी सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। ग़ुलाम का काम होता है कि जो आका कहे उसे अंजाम दे, लेकिन जो अपना काम होता है वो फिर ग़ुलाम नहीं अंजाम देता। ग़ुलाम को किस कमरे में रहना है ये मुअय्यन करता है आका, ग़ुलाम को क्या खाना है ये मुअय्यन करता है आका, ग़ुलाम के पास कितना माल होना चाहिए ये मुअय्यन करता है आका, ग़ुलाम को कौन सा लिबास पहनना है ये मुअय्यन करता है आका, ग़ुलाम को किस अंदाज में रहना है ये मुअय्यन करता है आका। परवरदिगार, हम तो तेरे ग़ुलाम हैं, हम तो तेरे बंदे हैं, सब कुछ हमारा तेरे हवाले है। हम ये नहीं कहते कि हमें कपड़ा दे दे, इसलिए कि कपड़ा तो तू यकीनन हमें अता करेगा। हम नहीं कहते कि तू हमें रिस्क दे, तू तो हमें रिस्क देगा, इसलिए कि हम तो तेरे बंदे हैं। अगर हम तुझसे लेकर न खाएं तो हम किसके पास जाएंगे? अगर तू हमें अता न करेगा तो हम किससे मांगने जाएंगे? जो कुछ भी हमें चाहिए है वो सब तेरी बारगाह से हमें मिलना है। और उसके बाद जुमला फरमाते, हारिबुन मिनका इलैक, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे भाग कर भी तेरी ही तरफ आ रहा हूँ। इंसान अगर खुदा से भागना चाहे तो कहाँ जा सकता है? इंसान को तो भागने के लिए कोई जगह ही उसके पास नहीं है। इंसान जब फरार भी करे तो फिर उसकी मंजिल अल्लाह ही करार पाएगी। जैसे कभी कभी होता है, इंसान समझता है कि किसी शय से दूर हो रहा है जबकि हकीकतन उससे करीब हो रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे भागकर अगर आगे भी बढ़ता हूँ तो तेरी ही तरफ बढ़ता हूँ। मैं तुझसे फरार भी करना चाहूँ तो मैं तेरी तरफ ही आऊँगा। ऐ मेरे परवरदिगार, जब मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, जब मैं तुझसे उम्मीदें लगा के बैठा हूँ, तो ऐ मेरे परवरदिगार, हम पर और हमारे जैसे अपने तमाम बंदों पर अपना करम नाजिल फरमा। यकीनन
दुआ का ये मौका, दुआ का ये फ़राज़ एक ऐसी मारिफत के दरवाज़े को खोल रहा है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इस दुआ के ज़रिए अपने परवरदिगार की तरफ हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाएं ताकि हमारी मारिफत में भी इजाफ़ा हो और हमारी दुआओं में भी वज़न और इबादतों में भी वज़न पैदा होता जाए। आइए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। करीम, तुझसे दुआ है हम सब के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस मुबारक महीने में अपनी बंदगी की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।